exception number 1 of murder. Exception number 1 of murder states that if the death is caused under grave and sudden provocation, then it would not be murder, rather it would be culpable homicide not amounting to murder. अब देखो, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में डिफरेंस क्या होता है? अगर मर्डर के लिए लाइबिलिटी है, देन द पनिशमेंट ऑफ मर्डर वुड बी गिवन. बट इफ इट इज अ सिचुएशन ऑफ 101, बट इट ऑल्सो फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 101, then it would not be murder, it would be culpable homicide not amounting to murder. देखो प्रैक्टिकली होता कैसे है. So for example, section 100, अगर सेक्शन 100 का पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में से कोई एक फुलफिल हो जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है. बट अगर सेक्शन 100 पार्ट 1, 2, 3 फुलफिल होने के साथ साथ, जीनस फुलफिल होने के साथ साथ सेक्शन 101 क्लॉज ए, बी, सी या डी मतलब स्पीशी में से भी कोई एक फुलफिल हो जाता है, देन इट इज नॉट अ मियर कल्पेबल होमिसाइड, इट इज द ऑफेंस ऑफ मर्डर. बट इसमें एक और सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल्पेबल होमिसाइड दैट इज सेक्शन 100 फुलफिल हो गया पार्ट 1, 2, 3, साथ साथ में सेक्शन 101 भी फुलफिल हो गया क्लॉज ए, बी, सी, डी में से कोई एक, बट उसी के साथ साथ में अगर सेक्शन 101 के कोई एक्सेप्शंस में से अगर कोई एक्सेप्शन भी फुलफिल हो गए, देन अगेन पहले 101 फुलफिल हुआ तो वो मर्डर हो गया, बट 101 के क्लॉज ए से डी के साथ साथ अगर कोई एक्सेप्शन भी फुलफिल हो जाते हैं, देन अगेन वो जो मर्डर है इट अगेन गोज बैक टू कल्पेबल होमिसाइड. और उस सिचुएशन को यहां पे बोला गया है इट वुड बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. मतलब वो होमिसाइड तो है और उसमें सेक्शन 101 के क्लॉज ए से लेकर डी के बीच में कोई फुलफिल भी हो गया, बट बिकॉज साथ साथ में एक्सेप्शन में से भी कोई एक्सेप्शन फुलफिल हो गया, एंड दैट इज व्हाई it is a culpable homicide which could not amount to murder, not amounting to murder because there is an exception. So that is the situation. हम ये और ये already पढ़ चुके हैं. अब हमें ये वाली situation पढ़नी है that what are the exceptions which will result into culpable homicide not amounting to murder. वो हमें पढ़ना है. And for that purpose, let's read exception number 1 to section 101. Exception number 1 is one of the most important exception of section 101. क्योंकि यहां पे बात की गई है किसकी? यहां पे बात की गई है about grave and sudden provocation, जिसके लिए आपने बहुत फेमस केस भी पढ़ा होगा, KM नानावती केस. तो जब आप KM नानावती केस पढ़ते हो, जिसपे आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, रुस्तम मूवी जो आई थी, that is on KM नानावती केस only. And KM नानावती case is regarding grave and sudden provocation. क्या बोला गया यहाँ पे? Culpable homicide is not murder. Culpable homicide is not murder. That means even though murder नहीं है, but culpable homicide तो है, और culpable homicide का मतलब है death has been caused. That means ये exceptions भी तभी apply होंगे when death has been caused. So culpable homicide is not murder if the offender, so culpable homicide is not murder if the offender, while deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of a person who gave the provocation or causes the death of any other person under mistake or accident. अब यहां पे क्या बोला गया है
at the time when death was caused. So exception 1 कब apply होगा? When death is caused, but at the time when death was caused, the state of mind of the accused was that he was deprived of his self control. जैसे आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था सेक्शन 22 इंसैनिटी, तो इंसैनिटी अनसाउंडनेस का भी जो डिफेंस जनरल एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं सेक्शन 22 में, वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था? दैट इफ अ पर्सन commits an act, an offense, but at the time of commission of the offense, his mind was affected, that he was incapable of knowing the nature and consequence. Same चीज यहां पे भी बोलिए. The accused has caused death, but accused का केस exception 1 में आएगा when at the time when he caused the death, he was deprived of his self-control. Self-control means he was deprived of the control over his mind. He did not have the control over his mind, due to which he got provoked and he caused death. So एक person जो death cause कर रहा है, लेकिन उसने death जब cause की, death cause करते time that person's self control was deprived. That means his mind was affected and his self control was deprived not by reason of insanity, क्योंकि अगर insanity होगी तो वो इस वाले exception में नहीं आएगा, तो वो general exception में आएगा under section 22. But वो murder की exception में तब आएगा when his mind was affected not by insanity but by grave and sudden provocation. इसको बोला जाता है लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. सो डेथ कॉज करते टाइम दैट पर्सन लॉस्ट द सेल्फ कंट्रोल, नॉट बिकॉज ऑफ इंसैनिटी, क्योंकि अगर इंसैनिटी होती, मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी, तो 22 में चला जाता, दैट इज कंप्लीट इम्यूनिटी सेक्शन 22. लेकिन यहां पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये एक्सेप्शन है, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट इम्यूनिटी, क्योंकि यहां पे कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर. मतलब कल्पेबल होमिसाइड तो होगा, दैट मीन्स मर्डर की पनिशमेंट नहीं होगी, बट कल्पेबल होमिसाइड की होगी. दैट मीन्स this is an exception, but this is not a general exception, and therefore it does not give complete immunity. अब यहां पे बोला गया है अगर डेथ कॉज करते टाइम किसी पर्सन के माइंड में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था, और उस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से ही लॉस्ट द कंट्रोल ओवर हिज माइंड, एंड ही लॉस्ट द कंट्रोल ओवर हिज माइंड, और उस लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल के अंडर ही कॉज द डेथ. अब डेथ किसकी कॉज की है उस पे बाद में आएंगे, बट पहले बात करेंगे कि सेक्शन 101 एक्सेप्शन 1 के अंडर आपको एक्सेप्शन तभी मिलेगा व्हेन द लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल वाज ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और ग्रेव और सडन के बीच में द वर्ड एंड हैज बीन यूज्ड. दैट मीन्स important essential element of exception 1 is that the provocation आपको exception तभी मिलेगा. exception मतलब आपकी punishment को murder से culpable homicide पे relax तभी किया जाएगा when you prove that the provocation was grave and sudden. That means it was grave as well as sudden. provocation grave भी होना चाहिए और sudden भी होना चाहिए. अगर सिर्फ grave था सडन नहीं था, नो डिफेंस. डिफेंस मतलब नो सेक्शन, नो एक्सेप्शन. अगर सडन था बट ग्रेव नहीं था, अगेन नो एक्सेप्शन. द वर्ड्स विच इज यूज्ड आर ग्रेव एंड सडन. दैट मीन्स इट शुड बी ग्रेव एज वेल एज सडन, बोथ. ग्रेव भी होना चाहिए, सडन भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 एक्सेप्शन. तो अब हम पढ़ेंगे कि ये ग्रेव का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेव. फिर हम पढ़ेंगे सडन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सडन. बट उसके पहले हम देखेंगे
that what do you mean by this word provocation? ये provocation क्या होता है? अब अगर बात करें provocation, to provoke means जैसे हम उस दिन पढ़ रहे थे abatement में, instigate, किसी को instigate करना, किसी को provoke करना, किसी को उकसाना. So a person is provoked. अगर कोई person अपने प्रोवोकेशन में एक्ट कर रहा है तो एक्ट तो कर रहा है बट वो उसका डेलिबरेट एक्ट नहीं है, बिकॉज ही इज एक्टिंग अंडर प्रोवोकेशन. उसको प्रोवोक किया गया तब उसने वो एक्ट किया. मतलब अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होता देन मे बी द पर्सन वुड नॉट हैव कॉज्ड डेथ. ही हैज कॉज्ड डेथ ओनली बिकॉज द provocation was so grave, the provocation was so sudden that he lost the self control. That means the degree of provocation also matters. आप ये नहीं बोल सकते कि provocation था. provocation होना चाहिए और वो provocation इतना grave और sudden होना चाहिए that it results into loss of self control. प्रोवोकेशन होना जरूरी है और प्रोवोकेशन इतना ग्रेव और सडन होना जरूरी है दैट इट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. एंड इफ दैट इज द केस, इफ द प्रोवोकेशन रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, देन an exception would be given. That means the criminal liability of the accused would be reduced from murder to culpable homicide not amounting to murder. लेकिन उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा द लेवल ऑफ ग्रेविटी एंड सडननेस ऑफ द प्रोवोकेशन. टू प्रोवोक मीन्स अगेन किसी को किसी चीज के लिए कंपेल करना. ऑल राइट, अगर एक पर्सन, जैसे इसमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल भी अगर आप लोगों ने सुना होगा, वन पर्सन, इट इज सिमिलर टू KM Nanavati केस, वन पर्सन सॉ हिज वाइफ विथ सम अनदर मैन, and that too in a compromising situation, in a very proximate situation. So provoked with that, वो vision उस man के लिए इतना grave था and he was not mentally prepared because it was sudden also. Suddenly he came back to home and he saw that. So it was sudden also. It was so grave because seeing his wife like that is a grave provocation for him, which provoked him so much that he caused death of the man. तो उस मैन की उसने डेथ कॉज कर दी एंड दैट डेथ वाज कॉज्ड अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. बिकॉज यहां पे जो एक्ट किया है वो डेलिबरेट एक्ट नहीं है, वो एक्ट किया गया है बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज सो प्रोवोक्ड, द प्रोवोकेशन वाज सो ग्रेव that he lost the self control and death was caused. तो grave का मतलब होता है intense. The provocation should be grave, only then the benefit of exception will be given. And grave का मतलब होता है intense. अब देखो ये जो grave word है, it is a completely circumstantial aspect. ये कंप्लीटली सर्कमस्टेंशियल एस्पेक्ट है. एंड वाई सर्कमस्टेंशियल? दिस इज कंप्लीटली सर्कमस्टेंशियल बिकॉज कोई सिचुएशन हो सकता है मेरे लिए ग्रेव हो बट आपके लिए ग्रेव ना हो. तो व्हाट इज ग्रेव, व्हाट इज नॉट ग्रेव, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते, देखो बोला क्या जाता है दैट द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन the facts and circumstances of the case. और कौन से facts and circumstances? For example, the moral values of a person. आपकी moral values कुछ और है, मेरी moral values कुछ और है. Social values of a person. आपकी social values कुछ और है, मेरी social values कुछ और है. Religious values of a person. आपकी religious value कुछ और है, मेरी religious values कुछ और है. And that is why in difference of values की वजह से आपके लिए हो सकता है जो ग्रेव है मेरे लिए ना हो, या मेरे लिए जो चीज ग्रेव है वो आपके लिए ग्रेव ना हो. एंड दैट इज व्हाई द वर्ड ग्रेव इज कंप्लीटली सर्कमस्टेंशियल. इट हैज टू बी सीन अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस.
there cannot be a uniform rule as to this is grave and this is not grave. No. What is grave in one fact may not be grave in another situation, and that is why what is grave is completely circumstantial. अब अगर इसी का एग्जाम्पल लें, so one day what happened, one woman, she was arguing with her husband, and in that argument what she did, she pulled her mangalsutra and she threw the mangalsutra on her husband's face. उसने अपना मंगलसूत्र निकाला, मंगलसूत्र which is considered to be very sacred. It is a sacred symbol of marriage. लेकिन ये चीज सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो बहुत कॉन्जर्वेटिव है या जिनके लिए रिलीजियस वैल्यूज आर टू हाई. बट अगर कोई पर्सन है जिसके लिए मंगलसूत्र इज लाइक अनदर ज्वेलरी, उसके कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है, उसके कोई सोशल सेंटिमेंट्स नहीं है, तो ऐसे केसेस में थ्रोइंग ऑफ मंगलसूत्र में नॉट बी ग्रेव फॉर दैट पर्सन. बट अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही कॉन्जर्वेटिव है, बहुत ही रिलीजियस है, एंड ही हैज अ वेरी सेक्रेड वैल्यू फॉर ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए removing and throwing of mangalsutra may be a very grave situation. So what is grave, what is not grave? It depends. It depends upon the facts and circumstances, which includes the moral values, the social values, the religious values of a person. तो क्या grave है क्या नहीं वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव होगा अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. बट ग्रेव है वो आपको प्रूव करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. Along with grave, you also have to prove that the provocation was sudden. Provocation means आपने deliberately act नहीं किया, सामने वाले ने आपको कंपेल किया, आपको प्रोवोक किया डेथ कॉज करने के लिए, और उसी प्रोवोकेशन में आपने डेथ कॉज की. ये आपको प्रूव करना है, और आपको प्रूव करना है कि सामने वाले पर्सन का प्रोवोकेशन ग्रेव था. ग्रेव इज सर्कमस्टांशियल. साथ साथ में आपको प्रूव करना है कि सामने वाले पर्सन का प्रोवोकेशन वाज सडन ऑल्सो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सडन? नाउ सडन प्रोवोकेशन का मतलब होता है अ प्रोवोकेशन इन विच वन पर्सन इज एक्टिंग वेरी सडनली. सडनली का मतलब होता है स्पॉन्टेनियसली, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है दैट देयर वाज नो प्री प्लानिंग. क्योंकि अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, डेथ कॉज कर रहे हो प्री प्लानिंग के साथ, तो फिर आप सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपने प्री प्लानिंग करके डेथ कॉज किया, मतलब वो आपका डेलिबरेट एक्ट है. द एसेंस ऑफ प्री प्लानिंग, द इफेक्ट ऑफ प्री प्लानिंग इज प्री प्लानिंग ऑलवेज मेक्स एन एक्ट डेलिबरेट. लेकिन अगर कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, द प्रोवोकेशन वॉज वेरी सडन, प्रोवोकेशन में और डेथ करने के बीच में देयर शुड नॉट बी अ टाइम गैप, तब माना जाता है प्रोवोकेशन इज सडन. कि जैसे प्रोवोक किया, तुरंत आपने एक्ट किया, दैट मींस द प्रोवोकेशन वॉज सडन फॉर यू. बट अगर प्रोवोक होने के बाद आपने टाइम गैप लिया, जैसे केएम नानावती में हुआ था, अगर प्रोवोकेशन के बाद आपने टाइम गैप लिया, तो उस टाइम गैप से अ प्रिजम्पशन में बी रेज दैट देयर वाज प्री प्लानिंग. तो फिर वो आपके लिए सडन प्रोवोकेशन नहीं है, क्योंकि आपको प्रोवोक तो किया गया बट आपने तुरंत एक्ट नहीं किया, आपने टाइम लिया. दैट मींस द प्रोवोकेशन वाज नॉट सडन. सडन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, दैट देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोवोकेशन एंड द कॉजिंग ऑफ डेथ. इफ देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द प्रोवोकेशन and the causation of death, then that provocation is known as sudden. और आपको प्रूव करना होगा that it was a sudden provocation for you, कि आपने वो चीज, फॉर एग्जाम्पल वो विजन फर्स्ट टाइम देखा, और फर्स्ट टाइम देखने पे it was so grave कि आपने spontaneously act किया, you caused death, then that would be a grave and sudden provocation. So general rule is that there should be no time gap. But यहीं पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रोवोकेशन एंड कॉजिंग डेथ में टाइम गैप होता है, बट स्टिल हम उसको सडन मानते हैं. नाउ इट डिपेंड्स. जनरल रूल इज अगर टाइम गैप है तो फिर वो सडन नहीं माना जाता है, वो प्री प्लानिंग मानी जाती है. बट अगर कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे देयर वाज अ टाइम गैप बट स्टिल द प्रोवोकेशन वाज कंसिडर्ड टू बी सडन बाय द कोर्ट.
फॉर एग्जाम्पल इन केसेस को बोला जाता है, सडन वर्ड के साथ ही हम पढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ स्लो एक्शन प्रोवोकेशन। इसको बोला जाता है द थ्योरी ऑफ स्लो एक्शन प्रोवोकेशन। स्लो एक्शन प्रोवोकेशन का मतलब है प्रोवोकेशन तो था बट द प्रोवोकेशन वॉज नॉट सडन, द प्रोवोकेशन वॉज स्लो। प्रोवोकेशन तो था बट प्रोवोकेशन सडन नहीं था, प्रोवोकेशन वॉज स्लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें द एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, अब अगर हस्बैंड कमिट्स क्रूअल्टी अपॉन हिज वाइफ एंड डेली बेसिस पे ही इज कमिटिंग क्रूअल्टी, एक बार क्रूअल्टी की, हो सकता है वाइफ उसी से प्रोवोक हो जाए, बट अगर वाइफ एक बार की क्रूअल्टी से प्रोवोक नहीं हुई, फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 1 month द हस्बैंड केप्ट ऑन कमिटिंग क्रूअल्टी अपॉन हिज वाइफ, फाइनली आफ्टर 1 month जब वाइफ का पेशेंस लूज हुआ तो वाइफ ने हस्बैंड की डेथ कॉज कर दी। अब यहां पे क्या वाइफ को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस मिल सकता है? बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप। फर्स्ट टाइम जब प्रोवोक हुई, क्रूअल्टी हुई, और आज जो डेथ कॉज की है उसमें टाइम गैप है। बट डू यू थिंक जस्ट बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप वी शुड नॉट गिव द डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन? द आंसर इज नो। क्योंकि देखो लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी कैपेसिटी, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा इंड्योरेंस कैपेसिटी होती है, जिनका पेशेंस थोड़ा ज्यादा होता है, वो प्रोवोक तो होते हैं बट उनका जो प्रोवोकेशन का इफेक्ट है इट लास्ट फॉर लॉन्ग। बट कुछ लोग होते हैं जो प्रोवोक करने के होने के बाद तुरंत एक्ट कर देते हैं, फॉर देम देयर इज नो टाइम गैप। बट द अदर केस जहां पे प्रोवोकेशन ग्रेव था, उन्होंने डेथ भी कॉज की है बट तुरंत नहीं की, स्पॉन्टेनियसली एक्ट नहीं किया, टाइम लेके किया, that can also be considered as grave and sudden provocation. It depends कि उस टाइम गैप के दौरान whether the provocation continued। क्योंकि जैसे क्रूअल्टी की अगर बात करें, ऐसा नहीं है ना कि एक बार क्रूअल्टी की और उसके 1 महीने के बाद डेथ कॉज की है, नहीं, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे ही वॉज कमिटिंग क्रूअल्टी अपॉन हिज वाइफ। तो जो प्रोवोकेशन था इट वॉज इन बिट्स एंड पीसेस, एवरी डे थोड़ा थोड़ा प्रोवोकेशन हुआ, फाइनली जाके एक दिन इतना हो गया दैट शी कॉज्ड डेथ ऑफ हर हस्बैंड। दिस इज ऑल्सो अ सडन प्रोवोकेशन, और इस टाइप के प्रोवोकेशन को बोला जाता है स्लो एक्शन प्रोवोकेशन, विच इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। The general rule is provocation would be sudden if there is no time gap between provocation and causation of death. बट दिस इज एन एक्सेप्शन। ये वो केसेस होते हैं जहां पे लोगों के ऊपर प्रोवोकेशन बिट्स एंड पीसेस में होता है, इट इज कंटिन्यूइंग इन नेचर। तो ऐसे केसेस में जस्ट बिकॉज फर्स्ट प्रोवोकेशन कुछ टाइम पहले हुआ था, दैट डज नॉट मीन कि आपने तब एक्ट क्यों नहीं किया। इफ द प्रोवोकेशन कंटिन्यूज देन इन द एंड ऑल्सो इफ द पर्सन कॉजेज डेथ, तो भी वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगा, उसको बोला जाता है स्लो एक्शन प्रोवोकेशन। एंड दिस रूल जो मैंने अभी आपको समझाया, इस रूल को एक्सप्लेन किया गया था इन द केस ऑफ आर वर्सेस आलूवालिया। आर वर्सेस आलूवालिया में द प्रिंसिपल ऑफ स्लो एक्शन प्रोवोकेशन वॉज डेल्ट, एंड इट वॉज हेल्ड दैट देर आर सम केसेस लाइक क्रूअल्टी, और इवन देखो क्रूअल्टी के अलावा एक केस और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्डेड लेबर। अब अगर कोई बॉन्डेड लेबर है तो डेली बेसिस पे दे आर फेसिंग एक्सप्लॉइटेशन, सो थोड़ा 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 एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फाइनली वन डे उनकी एंड्योरेंस कैपेसिटी हुई कंप्लीट एंड दे कॉज्ड डेथ। नाउ हियर दिस इज ऑल्सो प्रोवोकेशन इवन दो देयर इज अ टाइम गैप, क्योंकि इसको बोला जाता है स्लो एक्शन प्रोवोकेशन। द पर्सन वॉज प्रोवोक्ड बट नॉट इन वन टाइम, slowly, bits and pieces. That is also a provocation. In such cases also the person will get the defense, and this was held in the case of R versus Ahluwalia. So R versus Ahluwalia के अलावा अभी जो हमने grave and sudden provocation का meaning discuss किया, that was also dealt in the KM नानावती case. अब KM नानावती केस में बोला गया, जब हम केएम नानावती केस की बात करते हैं तो केएम नानावती केस में बोला गया, फॉर द डिफेंस अंडर सेक्शन 101 दैट इज मर्डर, इट हैज टू बी ग्रेव एज वेल एज सडन।
If it is only grave, no defense. If it is only sudden, no defense. It should be both. So this is KM Nanavati versus State of Maharashtra. इस केस में बोला गया ग्रेव प्लस सडन दोनों होना चाहिए। और ग्रेव का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया। ग्रेव कैसे पता करेंगे, सर्कमस्टांशियल है। सडन का मीनिंग क्या होता है वो भी हमने देखा। सडन के साथ साथ हमने देखा स्लो एक्शन प्रोवोकेशन। सो व्हेनेवर अ पर्सन वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसको कंपेल किया गया और जो कंपल्शन प्रोवोकेशन था वो ग्रेव था, वो सडन भी था। एंड इस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ही हैज कॉज्ड डेथ। और किसकी डेथ कॉज की है, इस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में ही हैज कॉज्ड डेथ ईदर ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। मतलब आपको सेक्शन 101 एक्सेप्शन 1 का डिफेंस तभी मिलेगा जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आप प्रूव करोगे। साथ साथ उस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आपने उसी पर्सन की डेथ कॉज की है जिसने आपको प्रोवोक किया था। सो इफ ए प्रोवोक्ड बी, देन अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बी शुड हैव कमिटेड एज डेथ। बट अगर प्रोवोक तो ए ने किया बट उस प्रोवोकेशन में आपने सी की डेथ कॉज कर दी, देन जनरली नो डिफेंस विल बी गिवन। आपको सेक्शन 101 एक्सेप्शन 1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरल रूल इज डेथ उसी की कॉज की गई होनी चाहिए जिसने प्रोवोक किया था, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। किसी और की भी डेथ अगर कॉज की है, जनरल रूल इज किसी और की डेथ कॉज करने पे एक्सेप्शन वुड नॉट अप्लाई। लेकिन अगर किसी और की डेथ कॉज की है आपने बट अंडर मिस्टेक और अंडर एक्सीडेंट, then also the benefit would be given. For example, मैं अगर हूं, मुझे अगर A ने प्रोवोक किया, A मेरे सामने खड़ा है। नाउ जनरल रूल इज मुझे बेनिफिट तभी मिलेगा जब उस प्रोवोकेशन में मैंने A की डेथ कॉज की है। बट व्हाट हैपेंड, मैं A की ही डेथ कॉज कर रही थी, मैंने A को ही शूट किया अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बट A हट गया और एक्सीडेंटली ए के पीछे बी खड़ा था, एक्सीडेंटली द बुलेट हिट बी। नाउ हियर आई हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ अ पर्सन हु डिड नॉट प्रोवोक मी, बट डेथ तो मैंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में की है। तो यहां पे क्योंकि बी की किसी और की डेथ कॉज हुई है बट अंडर एक्सीडेंट, स्टिल द डिफेंस, स्टिल द बेनिफिट ऑफ डिफेंस वुड बी गिवन। सो बेसिकली जनरली डेथ उसी की कॉज की गई होनी चाहिए जिसने प्रोवोक किया है, किसी और की नहीं। बट दो एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे यू विल गेट द बेनिफिट इवन फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ सम अदर पर्सन, एंड दैट इज इफ सम अदर पर्सन's death is caused either under mistake or under accident, then you will get the defense. So that is basically exception 1. लेकिन आप अगर देखोगे इस exception के भी कुछ exceptions है। That means the defense of grave and sudden provocation, the defense of grave and sudden provocation cannot be taken, the defense of grave and sudden provocation cannot be taken under these circumstances. First, provided that the provocation is not, provocation का defense आप कब नहीं ले सकते? First, if it was sought voluntarily or the person was voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. That means voluntary provocation is not a defense. That means आपको जो भी provocation हुआ है, grave होना चाहिए, sudden होना चाहिए, but it must be given by some other person. अगर आपने खुद को ही प्रोवोक किया है, अगर आप अपने खुद के एक्ट से प्रोवोक हुए हो, then no benefit of exception 1 would be given. Secondly, this grave and sudden provocation
कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट एनीवन who is a public servant or who is acting in obedience of law. अगर एक पब्लिक सर्वेंट फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर आए और पुलिस ऑफिसर ने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की, अब पुलिस ऑफिसर इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड ही इज डूइंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी. उनके एक्ट से मैं ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने मुझ पे अटैक किया, मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया, मैंने उनकी डेथ कॉज कर दी. नो, a grave or sudden provocation, it can never be exercised against a person who was acting under the obedience of law or who was a public servant acting under his official duty.